Hello class 9. Today we will read about our chapter, the last chapter of geography. The name is Natural Vegetation and Wildlife. What is vegetation and what is wildlife? Firstly we discuss about it and what is the position of our country in biodiversity. We also discuss this subject. Here I note some points here and we discuss about it. The first thing is mega biodiversity. What is mega biodiversity? The word mega denotes a huge amount, and here we look that there are 47,000 plant species in our country, and in this 47,000 species there are 15,000 are flowering plants. It means the plants where the flowers come out and the fruit occurs after it. There are also huge amount of animal species, and it is 90,000. If we sum it, then it become 1,37,000 of species that lives in our country. So our country is known as a mega biodiversity country, and the number of mega biodiversity countries in the world are 12. Is mentioned in your book also. So you can read your book and take it. Now we have also a point virgin vegetation. That what is virgin vegetation? Virgin vegetation is a type of vegetation that is undisturbed and spontaneously developed. It means the human interaction of that area was not happened. So the virgin vegetation is virgin because that is undisturbed. Undisturbed by whom? By humans, by human activities. And for the nurture of that vegetation, no one is there. They are only developed spontaneously. Now, what is flora and what is fauna? So, flora are the plants who are found in a region or in a period at a particular time or region. And the fauna, what are faunas? Faunas are like floras. In a particular time or period, the animals found at any place are faunas. Now we look here that the diversity of this uh, biosphere is affected by relief and climate. The two things are in relief. First is land and the other one is soil. In lands there are various type of landforms. We look here that if there are mountain, we found there are some other type of climates and other conditions. So completely different type of plants and animals can be found there. And in soils also there are various type of soil with the effect of various things.
And in climate, temperature, having temperature at different latitudes differently. Photo period, it's also the day duration time is known as photo period, and it is also vary with the latitudes. Precipitation, the location of a particular place and the surrounded circumstances determine it that precipitation become less or more. अब हम फिर से बात कर लेते हैं मेगा बायोडायवर्सिटी क्या होती है। तो मेगा बायोडायवर्सिटी किसी एक जगह पे ढेर सारे बहुत सारे जो है प्लांट और एनिमल इनके स्पीसीज का पाया जाना मेगा बायोडायवर्सिटी होगा। और हमारा जो देश है इंडिया, वो 12 सबसे बड़ी जो मेगा बायोडायवर्सिटीज हैं उनमें से एक है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हमारे वहां जो है 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं, जिसमें से 15,000 फ्लोरिंग जो है वो प्लांट्स हैं, मतलब उनमें फूल लगते हैं, फूलों से फल होता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स हैं। और कुल 90,000 जो है वो एनिमल स्पीसीज हैं, जानवरों के, कीड़े मकोड़े और जो भी हैं इनके स्पीसीज हैं, इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद से बात करते हैं वर्जिन वेजिटेशन का। तो वर्जिन वेजिटेशन ऐसा वेजिटेशन होता है जिसके वहां क्या नहीं होता है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, मतलब कि वहां पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, वहां पे कोई भी मानव का जो है इंटरेक्शन वहां पे नहीं होगा। ठीक है, और ये स्वतः खुद ब खुद जो है डेवलप हुए, इनका विकास खुद ब खुद हुआ, मतलब पेड़ से जो है बीज गिरे, फल गिरा, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन हुआ, बीज जो है वो जमीन में गया, फिर उसको खाद वगैरह मिल गई, ठीक है, वो जो है पानी बारिश वगैरह हुआ, वो जर्मिनेट कर गया, फिर से वहाँ पे प्लांट बने, और इस तरीके की प्रोसेस जो वहाँ पे चलती रही। तो इस तरीके का जो एरिया रहा, और इस एरिया में जो है जो भी प्लांटेशन पाया गया, जो भी वो वेजिटेशन पाया गया, वो वर्जिन वेजिटेशन रहा। इसके बाद से फ्लोरा और फाउना की बात करें तो फ्लोरा फाउना जो है दोनों ही किसी पर्टिकुलर रीजन और टाइम में मिलने वाले पौधे और जानवर को कहा जाता है। ठीक है, डाइवर्सिटी किस चीजों से इफेक्ट होती है? तो पहला है लैंड मास। ठीक है, तो बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं, तो लैंडफॉर्म्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। जैसे आपको जो है प्लेन रीजन में जो है अलग टाइप के जो है वेजिटेशन और जो भी फाउनास हैं वो मिलेंगे, मतलब जंतु मिलेंगे। लेकिन वही जो है हम अगर माउंटेन्स में जाते हैं तो वहाँ पर जंतुओं में कुछ भिन्नता आएगी। ऐसे ही जो है प्लांट्स में भी जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, वहाँ पे वेजिटेशन है, उसमें भी विभिन्नता देखी जाती है, डाइवर्सिटी देखी जा सकती है। ठीक है, आप अगर ऐसे ही चले जाओ जहाँ पे डेजर्ट का रीजन है वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको जो है अलग टाइप के पौधे मिलेंगे। आप जो है उन रीजन में चले जाओ जहाँ मिट्टी में, सॉइल में जो है वो साल्ट की मात्रा है, ठीक है, तो उस रीजन में आपको कुछ दूसरे टाइप के जो है पौधे मिलेंगे। ठीक है, वर्षा जैसे जैसे कम होती है वैसे उन रीजन्स में जाइएगा तो वहाँ पर भी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, अंतर मिलेगा। ठीक है, विभिन्नता मिलेगी। तो ये चीजें हैं जो लैंडफॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है। दूसरा है सॉइल। सॉइल में क्या होता है कि जो है वेरियस टाइप के, बहुत अलग अलग टाइप की जो है सॉइल्स होती हैं। जैसे दोमट मिट्टी है, तो दोमट मिट्टी में जो है आपको, या फिर आप बोलो जलोढ़ जो है, ये जो एलोवियल सॉइल है, तो इसमें जो है अलग टाइप का वेजिटेशन मिलेगा। फिर आपको जो है जो लेटेराइट सॉइल है, तो वहाँ पर आपको अलग टाइप का मिलेगा। तो अलग अलग टाइप की जो मिट्टियाँ होती हैं उनमें एक्चुअली होता क्या है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका कंटेंट और उनकी जो मात्रा होती है उसमें वो जो है अलग अलग होती है। और ये अलग अलग मात्रा के जो सीकर्स फ्लोरा फाउना होते हैं, ठीक है, खासतौर से फ्लोराज, तो वो फ्लोराज जो है वहाँ पे होते हैं, मतलब पौधे। तो ये जो सॉइल है ना, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स मिल रहे हैं, इनके वेरिएशन से जो है फाउनाज भी फ्लोरा चेंज होंगे, और फ्लोरा पे डिपेंड होता है फाउना। तो इसलिए जो है अलग अलग टाइप के जो फ्लोराज हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो है फाउनाज भी चेंज मिलेंगे आपको, अलग अलग वैरायटीज जो है फाउनाज की भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है मैटर करती हैं। इसके बाद से है टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होगा? जैसे जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है
तो वहाँ पर जो उसको सह पाएगा, जो उसको बियर कर पाए, वो जो है वहाँ पे रह पाएगा। फोटो पीरियड की बात है, ठीक है, मतलब कितने समय तक जो है वो सनलाइट आती है, इंसुलेशन आता है, तो उसकी भी बात होगी। तो कहाँ जहाँ पर डे जो है वो लंबे होंगे, दिन लंबे होंगे, वहाँ पर अलग तरीके का जो है आपको वेजिटेशन और ये चीज़ें फ्लोरा फाउना मिलेंगे, ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन की बात करें, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है प्रेसिपिटेशन, क्योंकि प्रेसिपिटेशन से वेजिटेशन और सॉइल दोनों ही अटैच्ड होते हैं, और जहाँ पे वेजिटेशन अच्छा रहेगा वहाँ से ट्रांस इवापोरेशन अच्छा होगा, तो वहाँ पर जो है आपको जो है प्रेसिपिटेशन की रेट भी अच्छी मिलेगी। और इस तरीके से हम देखते हैं ट्रायंगल बनता है, ठीक है, और ये ट्रायंगल में एक जगह जो है वेजिटेशन होगा, एक जगह जो है प्रेसिपिटेशन, और एक जगह जो है आपकी सॉइल होगी। तो ये जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर प्लांट्स ज्यादा घने मिलेंगे आपको जो डेंस फॉरेस्ट होंगे उन इलाकों में, और जब डेंस होंगे फॉरेस्ट तो यहाँ से ट्रांस इवापोरेशन अधिक होगी, और इससे जो है क्लाउड फॉर्मेशन में ईज होगा, क्लाउड फॉर्मेशन में ईज होगा, क्लाउड्स के लिए जो यहाँ से वेपर सप्लाई मिलेगी, तो क्या होगा, तो बारिश होगी, ठीक ना, तो प्रेसिपिटेशन होगा। और जब बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश के होने से जो वेदरिंग इरोजन होता है, ठीक ना, तो चट्टानें टूटेंगी और इससे जो है क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन होगा, एलुवियल सॉइल बनेगी, अच्छी सॉइल बनेगी, उर्वर सॉइल बनेगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन से बहुत ज्यादा हो गया तो सारी चीजें बह जाएंगी तो सॉइल खराब बनेगी, और सॉइल के टाइप पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे वेजिटेशन कैसा होगा, ठीक है। तो ये वेजिटेशन को डिसाइड करती है, और ये जो है प्रेसिपिटेशन को, प्रेसिपिटेशन सॉइल को, तो एक साइक्लिक प्रोसेस जो इनके बीच चलता रहता है, ठीक है। तो इससे जो है जो हमारे फ्लोरा फाउना है उन पे भी असर पड़ता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो ये कुल जो है 5 टाइप का जो है वेजिटेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, विच फॉरेस्ट आर नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इट मीन्स कि मतलब जो वो ऐसे फॉरेस्ट होंगे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, दे आर ऑलवेज ग्रीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है वो 200 सेंटीमीटर हो रहा है, इसका जो रीजन है वो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल रीजन में चूंकि वर्ष भर गर्मी पड़ती है और वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए हमेशा इसको रेनफॉल मिलता रहेगा, और इसकी वजह से जो है यहाँ पे ग्रीनरी वो मौजूद रहेगी, ठीक है। अब ये चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं, इंडिया में, खासतौर से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, तो वहाँ पर हम देखते हैं इंडिया में ये मिलता है वेस्टर्न घाट में। हमारे 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी एंड अंडमान निकोबार इन बे ऑफ बंगाल। तो इन दोनों जगहों पे अपर पार्ट्स ऑफ असम, असम के ऊपरी हिस्से में, नदर्न पार्ट में, ठीक है, जो वो अरुणाचल साइड में है, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है, टीएन कोस्ट, मतलब तमिलनाडु का कोस्ट है, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, यहाँ पे जो ट्रीज होती हैं, उनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से ट्रीज आते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो एबोनी है, महोगनी है, सिनकोना है, रबर है। तो आप जो है इसकी एक लिस्ट बनाओगे, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ का जो भी फ्लोरा फाउना है ये आपका काम है, क्योंकि आप जब काम करोगे तो आपका नॉलेज ग्रो करेगा, तो उसमें से जो आपको फ्लोरा फाउना का जो है वो लिस्ट बनाना है, आप खुद से बनाइएगा। सब में इस तरीके से उस पार्ट को मैंने छोड़ा हुआ है, उसको आप खुद से कीजिएगा। फिर इसके बाद से दूसरा जो है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस। तो
डिसिडुअस का मतलब होता है कि अपने पत्ते गिरा देने वाले, पत्ते झाड़ देने वाले, पतझड़ वाले, ठीक ना। तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो कि वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। और इसका जो रीजन है वो नॉर्थ ईस्ट, जो सेवन सिस्टर्स हैं अपने वहाँ, तो वो रीजन फुटहिल ऑफ हिमालय, जो हिमालय का गिरपद है, ठीक है, जो उसका तराई का रीजन है उस रीजन में, और झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, उड़ीसा का पश्चिमी हिस्सा, ठीक ना, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ये रीजन इसमें आ रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि 200 सेंटीमीटर से जो है 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर तक है। इसमें जो है दो टाइप के आपको मिलेंगे, एक मिलेगा मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और दूसरा होगा ड्राई डेसिडुअस। मतलब एक जो है नमी वाला डेसिडुअस है और दूसरा जो है वो सूखा वाला है, ठीक है। तो जो 200 से 100 सेंटीमीटर जहाँ पे बरसात होती है वो रीजन जो है वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का होता है, और जहाँ पे 100 to 70 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, वो रीजन होता है ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट का, ठीक है। आपकी बुक में जो है मैप भी बनाया हुआ है, उसमें रीजन भी शो किया है, तो वो आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा। और इसमें भी जैसे आप देखोगे तो जो टीक है, टीक जानते हो ना, सागौन जो होता है उसी को कहते हैं, वो इसमें जो है लीडिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा वही पाया जाता है। फिर उसके बाद और भी पेड़ों के नाम दिया है बुक में, तो उनको लिखना है आपको, और वहाँ पे जो भी फौनाज मिलते हैं, जो भी जानवर हैं, उनके भी नाम आपको लिखना है। इसके बाद से तीसरे की हम बात करें, थर्ड फॉरेस्ट एंड स्टॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे बरसात अब तक जो है 200 से ज़्यादा थी, यहाँ पर 200 से 70 सेंटीमीटर तक, और यहाँ पे बरसात जो होगी वो लेस देन 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर से कम बारिश कहाँ पे होती है, जहाँ पे होती होगी वहीं पर तो ये पाया जाएगा। तो गुजरात के रीजन में, राजस्थान, ठीक है, उस रीजन में, एमपी के भी एक बड़े हिस्से में जो है बारिश कम होती है। यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बारिश अच्छी होती है, लेकिन आपका जो ये प्रयाग है, प्रयाग 70 सेंटीमीटर का ही जोन है, ठीक है। और यहाँ से जैसे जैसे हम वेस्ट की साइड में जाएंगे तो वैसे वैसे जो है बारिश को कम मिलता जाएगा, ठीक है। तो यूपी का भी कुछ हिस्सा आ रहा है ना, और छत्तीसगढ़ चूंकि पहले एमपी का ही पार्ट था, तो वैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर भी मिलेंगी, तो इसलिए यहाँ पर भी मिलेगा। और हरियाणा जो वेस्ट यूपी से इसका बॉर्डर टच करता है, तो वहाँ पर भी। फिर इसके बाद से आपकी बुक में है माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट, लेकिन जो है हमने यहाँ पे चूंकि सुविधा के लिए मुझे लगा कि सही है, तो मैंने यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट बनाया। तो मैंग्रोव ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो सुनामी से और जो भी चक्रवाती दशाएं होती, तो उन सारी चीज़ों से जो है हमें बचाते हैं। जो समंदर से आने वाले विपत्तियां हैं, क्योंकि चाहे सुनामी हो या चक्रवात हो, ये एक तरीके की विपत्तियां ही हैं, वो उनको जो है कमज़ोर करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रक्षक हैं, और इसलिए ये जो है कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, खास तौर से डेल्टा के रीजन में। जैसे आप देखोगे तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है, ठीक है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो है मैंग्रोव्स हैं। फिर आप देखोगे महानदी है, कृष्णा गोदावरी का बेसिन है, कावेरी का बेसिन है, तो ऐसे जो डेल्टाई रीजन है उस रीजन में भी ये पाए जाते हैं, और ख़ासतौर से उन्हीं रीजनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ जगहों पे कोस्टल रीजन्स में ये मिलते हैं। इनका काम हमें बताना है, बचाना है। और इसमें जो है आप देखोगे तो ये मार्सी लैंड में होते हैं, क्योंकि जो दलदल का हिस्सा होता है, जो भी डेल्टाई रीजन होता है वो मार्सी ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो दलदली रीजन में ये होते हैं, और इस वजह से जो है इनकी जड़ें वो बहुत घनी होती हैं, ठीक ना, और वो मिट्टी को पकड़े रहती है, तो इससे जो सॉइल इरोजन है उसको भी रोकते हैं, और बहुत सारा जो है डेंस्ड होने की वजह से बहुत सारा जो है बायोडाइवर्सिटी को अपने वहाँ ये हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं। इनमें जो है जो फल लगता है, तो फल में ही जो इसका बीज है वो अंकुरित हो जाता है जब पकता है,
और फिर जो है पक के फल नीचे गिरता है और वो फिर से आसानी से वहाँ से जर्मिनेट करके, तो इस तरीके से ये जो है जंगल होते हैं इनके। ठीक है, खासतौर से ये राइजोफोरा में पाया जाता है, जो आप बॉटनी में पढ़ते हैं शायद। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। अब हम आते हैं मोंटाने फॉरेस्ट। तो मोंटाने फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि इसमें जो वेजिटेशन होती है वो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होती है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, उत्तुंगता। ठीक है, तो ये ऊंचाई के अकॉर्डिंग होती है। तो अब देखोगे आप इसमें, तो जो फुटहिल रीजन में है, ठीक ना, वहां से लेकर के और 1000 मीटर या फिर जो है 2000 मीटर, ये इस ऊंचाई तक। अब 2000 मीटर कहाँ पे और 1000 कहाँ पे? तो जैसे ही हम लैटिट्यूडनली जब ऊपर जाएंगे तो ये हाइट जो है वो कम होती जाएगी। ठीक ना, इसलिए दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम हमारी अक्षांश जो है वो 34 है, ठीक है, तो वहां पर ये 1000 नहीं होगा, ये जो है सॉरी यहाँ पे 1000 की तरफ आएगा। लेकिन वही अगर कम होगा कि हम जो है 23 डिग्री के आसपास हो, तो ये हाइट जो है वो बढ़ेगी। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ऊपर तक जो है हाई टेम्परेचर मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मतलब 34 के आसपास अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अंतर होता है। इसी की वजह से जो है 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक जो है ये वैरी करेगा। तो ये जो है आपको मिलता है। तो अब जो वेट टेम्परेट टाइप का है ये वहाँ पे मिलेगा। कारण क्या है कि जो ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई के हिसाब से जो है नमी जो होती है वो भी कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर गिरता है। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा वैसे वैसे जो हवा है उसकी नमी को अपने अंदर रखने की, रोक के रखने की क्षमता उसकी कम होती है। तो इसलिए वेजिटेशन भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर एवरग्रीन ब्रॉड लीफ, ये जो है आपको मिलेगा 15,000 टू 300 सॉरी 15,000 नहीं 1500 टू 3000 मीटर की हाइट तक। और यहाँ पे क्या होगा कि वो चौड़ी पत्ती वाले जो वन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उसके ऊपर आप देखोगे जैसे जाओगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा कि वहाँ पे आपको ग्रासलैंड मिलेगा। ठीक है, अल्पाइन टाइप वेजिटेशन मिलेगी। तो इसमें कौन कौन से वेजिटेशन आएंगे, कहाँ कहाँ पे ये चीजें मिलेंगी? ये चीजें आपको मिलेंगी वेस्टर्न घाट में और जो नॉर्थ ईस्ट है उस रीजन में। ठीक ना, फिर जो हिमालय का फुटहिल है उस रीजन में आपको ये चीजें मिलेंगी, ये मिलेगा, ये भी मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाएगा और वेजिटेशन जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक ना, और फिर ग्रास मिलेगी, घास मिलेगी, अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगा। और इसके ऊपर भी अगर आप जाओगे तो आपको स्नो लाइन एक होती है और स्नो लाइन के ऊपर आपको बर्फ मिलती है, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको जो स्नो लाइन का है या फिर ये चीज़ें हैं ये आपको हिमालय में मिलेगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट में आपको ये नहीं मिलेगा। वेस्टर्न घाट में आपको ये टेम्परेट और जो है वेट और एवरग्रीन ब्रॉड लीफ जो है वो फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट ही आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट में। लेकिन बाकी ये जो दोनों जो है ये भी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ये मिलेंगी जो हिमालय का रीजन है उस रीजन में। तो ये जो है माउंटेन फॉरेस्ट है और ये जो है वेरी करता है या इसमें जो चेंजेस आते हैं वो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होती हैं और इसी वजह से यहाँ पे हाइट जो है वो मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हमने वेजिटेशन को देखा। अब इसके बाद से हम देखते हैं जो वाइल्ड लाइफ है, फाउनास। फाउनास को देखते हैं। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, क्योंकि वेजिटेशन की बात तो हो चुकी। वाइल्ड लाइफ में हम देखते हैं कि टोटल जो एनिमल स्पीसीज हैं इंडिया में उनकी संख्या 90,000। इसमें से बर्ड्स हैं 2000 टाइप की, मतलब ये 2000 जो है वो केवल बर्ड की स्पीसीज हैं। जो टोटल जो वर्ल्ड में बर्ड की जो स्पीसीज हैं उनका 13% है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व के चिड़ियों की जो प्रजातियां हैं उनका 13% वो इंडिया में रहता है। ऐसे ही फिशेस के बारे में है कि 2546 फिश स्पीसीज हैं जो
वर्ल्ड फिश स्पीसीज के जो है 12% को मतलब रिप्रेजेंट करती है, इंडिया में पाई जाती है। मतलब कि टोटल वर्ल्ड की जो 100% फिशेस हैं उनका 12%, उनका 12% जो है वो इंडिया में है। ऐसे ही हम अगर बात एम्फीबियंस की करें, एम्फीबियंस वो होते हैं जो जलचर भी होते हैं और थलचर भी होते हैं, मतलब जमीन और पानी दोनों ही जगहों पे रहते हैं। ऐसे एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो ये टोटल वर्ल्ड का जो परसेंटेज है उसका 5 से 8%, 5 to 8% जो है वो इंडिया में रहते हैं। अब इसके बाद से है कि इस बायोडायवर्सिटी का मतलब ये सब कुछ है, इसका क्या फायदा है, इसका यूज क्या है, ठीक है। तो यूज के बारे में अगर हम बात करें कि यूजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो ये है फॉर फूड, इसको हम फूड के तौर पे यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स हम बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस यूज करते हैं फूड के लिए, खाने के लिए। जैसे जितने भी सीरियल्स हैं, अनाज हैं, पल्सेस हैं, दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, कुछ रूट्स और तमाम चीज़ें जो हम खाते हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इन्हीं से आता है और ये पार्ट है बायोडायवर्सिटी के, तो हमको जो है ये मिलता है। फिर इसके बाद से आप देखोगे तो मेडिसिन, एज ए मेडिसिन भी हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें, तो इसमें एनिमल्स प्रोड्यूस भी हैं, कभी कभी जो है एनिमल बॉडी पार्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो है उनके कुछ चीज़ें, जैसे अभी अगर डेंगू की बात करें तो उसमें लोग बकरी का दूध देते हैं कि इससे जो है प्लेटलेट्स काउंट जो है वो इम्प्रूव होगा। तो वो अजाछेरा जो होता है वो बहुत सारे प्रसाधनों में भी यूज़ किया जाता है, तो इस तरीके से उसमें देखेंगे। फिर जो है हम जब भी जो भी कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह अगर लेते हैं, खाते हैं, तो वो भी इन्हीं से बनता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है वो या तो बैक्टीरियाज होते हैं या फंगस होते हैं, तो इनसे जो है चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद से प्लांट्स की बात करो आप, तो प्लांट्स भी इस तरीके के हैं, कई बहुत सारी जो है जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे नीम का पौधा हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, सदाबहार हो गया, ठीक है, तो ब्राह्मी हो गया, ये सब जो है एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए हम अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम में तो उतना ज़्यादा नहीं, मतलब आप जो है बस, ट्रक और तमाम व्हीकल्स हो गई हैं, लेकिन एंशिएंट एरा की बात करें, मिडाइवल पीरियड्स की बात करें, तो उस टाइम पे क्या होता था, लोग जो है या तो बैलगाड़ी यूज़ करते थे, नहीं तो घोड़ा गाड़ी यूज़ करते थे, बग्घी यूज़ करते थे। तो ये सब जो है गाड़ियाँ, तो वो जानवर ही उसको खींचने का काम करते थे, ठीक है। और आज भी बैलगाड़ी, टांगे, ठीक है, बुग्गीज, ये सारी चीज़ें जो यूज होती हैं कहीं ना कहीं, और फिर जो है आप अलग अलग जोन्स में देखो तो अलग अलग जानवर जो है उन सारे कामों को करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक बायोडायवर्सिटी का फायदा है। उसके बाद से जो मैंने यहाँ पे लास्ट पार्ट लिखा वो है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के लिए भी, अब एंटरटेनमेंट कैसे, जैसे अगर कोई जानवर करतब दिखाता है आपको, तो वो एक एंटरटेनमेंट हो गया, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वो करतब जो है अपनी खुशी से नहीं दिखाता है, वो जो उसका मालिक रहता है ना, मदारी, उसके डंडे की वजह से दिखाता है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। सही चीज़ें क्या है कि हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है जंगल में देखते हैं तमाम तरीके के पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ पे पक्षियों का कलरव और ये सारी चीज़ें, तो वो भी हमको इंटरटेन करती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें क्यों मिल पाती हैं, क्योंकि बायोडायवर्सिटी ने उस इलाके को इतना कलरफुल बनाया हुआ है, इसीलिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको बायोडायवर्सिटी से मिलती हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो जो फल लगते हैं पेड़ों में, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मधुमक्खियों का रोल है, भौरों का रोल है, ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, उनका उसमें रोल है, ठीक है। फिर आप देखोगे आपको अलग अलग तरीके के जो है फ्रूट्स मिलते हैं, तो वो सब भी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है लाइफ को एक डाइवर्सिफाई बनाते हैं, एक अलग रंग देते हैं, इसलिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। सांप को जैसे आप देखते हो तो इसका क्या ज़रूरत है, तो उसका जो वेनम होता है, उसका जो जहर होता है, विष होती है,
उससे भी बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं, इसलिए वो भी ज़रूरी है। और जब आप बात करोगे पूरे इकोसिस्टम तो इसको बैलेंस रखने के लिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास ये सारे जानवर हैं। जैसे आप कहोगे कि शेर की क्या ज़रूरत है, बाघ की, तेंदुआ की क्या ज़रूरत है, तो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि तेंदुआ जो है बंदरों को खाता है और बंदर पेड़ों को खाते हैं। तो अब सोचिए कि अगर ये जानवर ना हो तो बंदर क्या करेंगे, सारे पेड़ों को खा जाएंगे और फिर आपके लिए जो कुछ चीज़ें बचेंगी ही नहीं। आप सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस रहे इसके लिए ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी बची रहे, बनी रहे। ठीक है, अब इसके बाद से हम देखते हैं कि थ्रेट तो किस तरीके से जो है कौन कौन सी चीजें जो थ्रेट पैदा कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, किससे जो है बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, भय किससे है इसको, ठीक है, खतरे किससे है। तो वो खतरों की जो बात करें तो पहला मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है पॉल्यूशन, एक बहुत बड़ा काज है। क्योंकि पॉल्यूशन से क्या होता है कि एयर, वाटर, ठीक है, सॉइल, हर तरीके की चीजें हैं ये पोल्यूटेड हो रही हैं और इससे भी बहुत सारे जो वो है बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनको नुकसान हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं या ये सारी चीज़ें, तो इनसे एक वेव निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और कहीं ना कहीं पक्षियों के जो अंडे होते हैं वो जो उनकी मेच्योरिटी होती है उस पर ये बैड इफेक्ट डालता है। ठीक है, अगर आपने जो है रोबोट 2.0 देखा होगा तो उसमें जो है ये मैटर डिस्कस किया गया है। तो वो भी एक नुकसान पहुंचाता है और कारण क्या है, पोल्यूशन। ठीक है, दूसरी चीज़ आप अगर बात करो तो बहुत सारे एक्वेटिक जो क्रिएचर्स हैं जिसमें मछली, झींगे, केकड़े, कछुआ, ठीक है, और बहुत सारे उसमें जो जूटेंट हैं और प्लैंक्टन्स हैं, उन पे भी ये पोल्यूशन बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डालता है, बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। तो कहीं ना कहीं जो मरीन या एक्वेटिक जो क्रिएचर्स है, जो उसकी डाइवर्सिटी है, उसको ये इफेक्ट करता है, उसको भी बर्बाद करता है। फिर क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो किसी भी चीज़ का अति दोहन, बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, आवश्यकता से अधिक उसको जो है हम इस्तेमाल करने लगेंगे तो भी उसको जो है नुकसान होने लगेगा, उस पर खतरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जैसे हम अगर बात करें कि सॉइल को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत फसलें उगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, और उसको सही से अगर हम मैन्योर ना दें, नर्चर ना करें, तो वो जो है खुद को सही तरीके से जो है डेवलप नहीं कर पाएगी और ऐसे में हमारी जो सॉइल है वो बीमार हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़, और इससे क्या होगा कि और भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो भी उसमें चीज़ें, जो भी पौधे, जो भी जीव जंतु है, उनको जो है दिक्कत होगी। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी जो है वो नुकसान पहुंचाता है बायोडाइवर्सिटी को। इसके बाद से डिस्ट्रिक्शन। डिस्ट्रिक्शन से मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन जो करते हैं हम, ठीक है, तो विनाश। तो जो डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है डिस्ट्रक्शन से, तो डिस्ट्रक्शन से जो है जैसे जंगल कट जाएंगे, जब जंगल कट जाएंगे तो जंगली जानवर कहाँ रहेंगे। हम कहते हैं कि जानवर जो है वो आबादी वाले क्षेत्र में घुस गया, नहीं, वो नहीं घुसा है। एक्चुअली हमने जंगल काट के हटा दिया और वहाँ पे अपनी आबादी बना दी, तो इस वजह से वो उसका घर था जानवर का, लेकिन हम घुस गए जानवरों के घर में, इसलिए जानवर कभी कभार घूमने आ जाता है तो फिर हमको बुरा लगने लगता है। तो ये चीज़ें, तो डिस्ट्रक्शन, इससे भी आप देखोगे तो बहुत सारे जो है जीव जंतु, ठीक है, खासतौर से जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बर्ड्स वगैरह। जैसे पहले घरों में क्या था कि गौरैया जो अपना घोंसला बनाती थी, आज के घरों में देखो तो क्या है कि गौरैया का घोंसला नहीं दिखता है। पहले के घरों का जो है वो जो भी स्ट्रक्चर था वो इस तरीके का था, उसमें वो रह लेती थी, लेकिन आज ये कंक्रीट के मकान जो है वो उनको रहने के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये डिस्ट्रक्शन होता है, तो डिस्ट्रक्शन से भी थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। और जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है वो है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज से क्या होता है ना कि जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो जो है
इफेक्ट होता है क्लाइमेटिक चेंज से, और इसकी वजह से जो है उसके जीनोम में जो है दिक्कत आती है, वो जो है उस क्लाइमेटिक चेंज के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से वो मर जाता है। जैसे ऐसे बहुत सारे जानवर अगर आप बात करोगे तो मैमथ वगैरह जो है इस तरीके के हाथी रहे, मैमथ एक वो खत्म हो गया। अभी आप अगर देखो तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो पोलार बियर्स हैं, ठीक है, सफ़ेद ध्रुवी भालू जो होते हैं, उन पे भी ये थ्रेट है, वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और उनको रहने के लिए वही क्लाइमेट चाहिए, एकदम ठंडी बर्फ़ चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेटिक चेंज है इससे भी बायोडाइवर्सिटी बहुत चेंज हो रही है। पिछले दिनों की एक रिपोर्ट थी, तो उस रिपोर्ट में ये था कि क्लाइमेटिक चेंज होने से क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करेगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे वीट का प्रोडक्शन डाउन होगा, ठीक है, वैसे वैसे जो है ड्राउट और फ्लड इन दोनों की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, तो राइस का प्रोडक्शन भी जो है वो इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इससे जो है जनता जनार्दन के ऊपर जो है जो एक प्रेशर पड़ेगा रिसोर्सेज पे, भाई प्रोडक्शन कम होगा, जनसंख्या बढ़ ही रही है, तो लोग खाएंगे कैसे, फिर इसके लिए जो है आप देखोगे वार की कंडीशन आ सकती है। तो उससे बचना है तो क्लाइमेटिक जो चेंज है उसको, उसके रेट को स्लो करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है मिटिगेशन ऑफ आवर, जो भी हम ये एक्सक्रीशन करते हैं, जो इमिशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का, तो ये हार्मफुल जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उनको रोकना पड़ेगा। अब जो स्टेप्स हैं, तो गवर्नमेंट जो है क्या क्या स्टेप्स लेती है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए। तो पहला है इसमें इन सिटू कंजर्वेशन, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी बुक में दिया है बीएसआर्स के बारे में, बायोस्फीयर और रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जो है जो वहाँ के इंडिजिनस, मतलब वहीं पे वो उत्पन्न हुए हैं, वहीं पे रहते हैं, उनकी फेवरेबल कंडीशंस है, तो उनके लिए वहाँ पर वो सारी चीज़ें हम मुहैया कराते हैं, और वो वहाँ पर जो है सर्वाइव करते हैं, और वहीं पर जो है जब उनकी फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं तो वो वहाँ पर अपनी संख्या को तेज़ी से बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इन सिटू कंजर्वेशन। इसमें जो है अभी आपके बुक में तो एक ही दिया है, लेकिन इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो है सेंचुरीज होती हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स होते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है वो बीएसआर होता है। और कुछ जो है पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। तो ये कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स जो चलाए गए हैं, उनमें आप देखोगे तो प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ठीक है, और इसी में आप देखोगे तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, और गंगा की जो डॉल्फिन है इसके लिए भी प्रोजेक्ट चलाया गया है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको कि संरक्षण के लिए सरकार घोषित कर देती है, जैसे गौरैया के लिए गवर्नमेंट ने किया हुआ है, ठीक है, डॉल्फिन के लिए किया हुआ है। तो ऐसे जानवरों को बचाने की ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो विलुप्ति की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सारे मसले पे हम देखें तो एक संस्था है जो काम करती है, उसका नाम है IUCN, ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉडी है, और ये जो है जो भी जो जानवर हैं या जो प्लांट्स हैं, ठीक है, तो इनका जो है जो भी व्यापार वगैरह होता है उसको वो जो है रेगुलेट करती है और बढ़ावा देती है कि जो भी ये वाइल्ड लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि जो ह्यूमैनिटी है ये लंबे समय तक जो है सर्वाइव कर पाए, इस पे जो है किसी तरीके का थ्रेट ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। हाँ, एक चीज़ और, आपकी बुक में जो है वो दिया है 18 BSRs, तो उनकी एक लिस्ट बना लेंगे आप, ठीक ना, कि कौन कौन सा BSR है और कहाँ कहाँ पे है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उधर जो है आपको मानस, नोकरेक, डेब्रूसकोवा और एक ध्यान दिमाग, ये जो है आपको मिलेंगे। फिर आपको जब सुंदरबन है, सिमलीपाल है, ठीक ना, तो ऐसे हैं, नंदा देवी है, नोकरेक, सॉरी नोकरेक तो पता है, नीलगिरी, ठीक है, ऐसे ही आप जाओगे तो ग्रेट निकोबार, ये सारे जो है आपके BSRs हैं, और 18 इनके नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आप जानो, और इसकी लिस्ट बना करके आप जो है जब लिस्टिंग का काम करेंगे तो उससे ये होता है कि
आपको ये पता चलता है कि ये चीज़ें हमारे वहाँ हैं और वो चीज़ें जो है निकाल देते हैं, तो एक बार लिखते हैं पढ़ते हैं तो ये सही रहता है। फिर इसके बाद से कुछ और चीज़ें हैं, जैसे जो BSRs हैं, तो इसमें कुछ को जो है वो यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है। अभी एक नया इसमें इंक्लूड हुआ है, पहले इसमें जो है 10 थे और अभी जो है 11वां इंक्लूड हुआ है पन्ना। ठीक है, तो इनको भी आप जो है देख लीजिएगा गूगल से और इसका एक अच्छा सा लिस्ट बनाइएगा और अच्छे से इसको आप तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो है आपके स्कूल में तो है ही, एग्ज़ाम जो देंगे आप या फिर जब भी कभी कंपटीशन अगर होता है तो कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको जानना चाहिए।